ناربل دومیل کے پاس سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے پر آج دوپہر کے بعد فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایس پی ویسٹ شہزاد سلیریا نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں ملیٹنٹوں کی نقل و حرکت سے متعلق پہلے سے ہی اطلاع تھی۔ اس کے بعد کئی جگہوں پر ناکے لگائے گئے تھے۔ اسی دوران ناربل کے پاس ایک ماروتی گاڑی آئی، اسے روکنے کے لیے کہا گیا، تاہم وہ نہیں رکے۔ فائرنگ کے بعد سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس واقعے میں ایک مقامی شخص زخمی ہو گیا ہے، اسے علاج و معالجے کے لیے سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا۔ موومنٹ ہو رہی ہے ٹیررسٹ کی، تو اس کے لیے ہم نے کچھ اسنیپ ناکے وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ ماروتی گاڑی یہاں سے آئی ہے جس کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے، اس نے ریورس کر کے بھاگی ہے، تو اس کے چلتے جو ہمارے جوان تھے انہوں نے اس کو وارننگ کیا ہے۔ سیولین یہاں پہ ایک مکی بیچ رہا تھا، شوکت لڑکا ہے، جہاں تھوڑی ہڑبڑاہٹ ہوگی تو وہ گرا ہے، اس کو 3 سٹچز لگے یہاں پہ کہیں پتھر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ اس وقت کی بڑی خبر، ترنز شوپیاں میں فائرنگ، کار میں سوار تھے ملیٹنٹ، فورسز نے رکنے کو کہا مگر وہ نہ رکے، بعد میں گاڑی چھوڑ کر ملیٹنٹ بھاگ گئے۔ گاڑی کو فورسز نے ضبط کر لیا ہے۔ امام صاحب شوپیاں کے گوہر نامی وکیل کی بتائی جا رہی ہے یہ کار۔ کانگریس سے گوہر حسین کی وابستگی بتائی جا رہی ہے۔ کافی اہم یہ خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں۔ ترنز شوپیاں میں فائرنگ ہوئی ہے، کار میں سوار ملیٹنٹ تھے، فورسز نے رکنے کو کہا مگر وہ نہیں رکے اور بعد میں گاڑی چھوڑ کر ملیٹنٹ بھاگ گئے۔ گاڑی کو فورسز نے ضبط کر لیا ہے۔ وہیں آپ کو بتا دیں امام صاحب شوپیاں کے گوہر نامی وکیل کی یہ کار بتائی جا رہی ہے۔ گوہر حسین کی وابستگی کانگریس سے بتائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں آج ڈی ڈی سی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی پولنگ اختتام پذیر ہوئی۔ یو ٹی میں پولنگ کی مجموعی شرح 50.08% رہی۔ اس دوران سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈی ڈی سی چناؤ کے چوتھے مرحلے کی پولنگ، سخت سیکیورٹی کے بیچ ڈالے گئے ووٹ، ووٹروں کی کثیر تعداد نے جمہوری عمل میں لیا حصہ۔ یو ٹی کے 34 حلقوں میں ہوئی پولنگ۔ جموں کشمیر میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے لیے 8 مرحلوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ آج چوتھے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ ابتدائی 3 مراحل میں پولنگ کا اوسط تقریباً 50% رہا۔ اس مرحلے میں سری نگر کو چھوڑ کر یو ٹی کے تمام اضلاع میں پولنگ ہوئی۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ رائے دہی ہوئی۔ وادی کشمیر اور جموں ڈویژن کے بعض علاقوں میں صبح سویرے پولنگ مراکز پر ووٹروں کی تعداد تھوڑی کم رہی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مراکز پر لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ کووڈ وبا کے تناظر میں رائے دہی مراکز پر کووڈ پروٹوکول پر عمل کیا گیا۔ چوتھے مرحلے میں 34 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے، جن میں کشمیر سے 17 اور جموں سے 17 سیٹیں شامل ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے 48 خواتین سمیت 138 امیدواروں نے اپنی قسمت آزمائی، جبکہ جموں ڈویژن سے 34 خواتین سمیت 111 امیدواروں نے حصہ لیا۔ ووٹروں نے اب ان امیدواروں کی قسمت بیلٹ باکس میں بند کر دی ہے۔ سبھی کو ووٹوں کی گنتی کے دن کا انتظار رہے گا۔ ڈی ڈی سی چناؤ کے مزید 4 مرحلے باقی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے ساتھ ساتھ سرپنچوں اور پنچوں کی خالی سیٹوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے۔ چوتھے مرحلے کے تحت سرپنچ کی 123 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جن میں سے 45 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور آج سرپنچ کی 50 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ اسی طرح 1207 پنچ سیٹوں میں سے 416 پر بلا مقابلہ انتخاب ہوا اور 216 پنچ حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ شوپیاں میں نامعلوم افراد نے ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر اس وقت پتھراؤ کیا جب وہ پولنگ سٹیشن سے واپس آ رہے تھے، تاہم اس پتھراؤ میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شوپیاں کاپرن پولنگ سٹیشن سے واپس آ رہے تھے۔ جو ہی ان کی بلٹ پروف گاڑی نارواو علاقے میں پہنچی تو یہاں پر کچھ نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ اس کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ یاد رہے کہ ڈی ڈی سی اور پنچایتی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے تحت آج شوپیاں میں بھی پولنگ ہوئی۔ سابق ایم ایل اے شوپیاں شیخ رفیع نے ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر پتھراؤ کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے ڈی ڈی سی انتخابات میں اپنے علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ووٹ ڈالے ہیں۔ جو
हमारे कंडी एरियाज़ है, कंडी एरियाज़ में तो हमेशा हमारी पोलिंग अच्छी रहती थी और आज जो पाइन के इलाके हैं, हमारे पाइन के इलाके, उसमें यही भी कारण है कि ये मिल्टन से इफेक्टेड एरियाज़ है। जिस तरह आज हमारे डीसी साहब पर भी जो पथराव हुआ है कहीं कापरन में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त उस चीज़ का मजम्मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि वोट पाल करने के लिए, वोट डालने के लिए घरों से निकलना चाहिए। और पीपल्स आइलैंड्स जो थी उसमें उसकी जो कामयाबी है वो यकीनी है। जिला कुलगाम में डीडीसी और बल्दियाती इंतखाबात के चलते बेशतर पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग की शरह 1% से भी कम रही। इंतहाई हसास इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, ताहम यहाँ वोटरान की बहुत कम तादाद ने पोलिंग मराकज़ का रुख किया। कुलगाम ए और बी के लिए पोलिंग की शरह काफ़ी कम रही। कातरसू के एक स्कूल में 7 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। यहाँ 1779 वोटर थे, उनमें सिर्फ 9 ने ही अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। यहाँ पोलिंग एजेंटों का भी कोई अता पता नहीं था। इसी तरह चंद दीगर पोलिंग मराकज़ से भी इसी तरह की खबरें हैं। उधर कस्बा कुलगाम में बल्दियाती इंतखाबात के चलते तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मुतासिर रही। मजमूई तौर पर जिले में पोलिंग अहसन और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। बांडीपुरा में इलेक्शन से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बांडीपुरा बनकूट के बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद के सामने रखे गए कुरान पर नौजवान अपना हाथ रखकर कस्में खा रहे हैं। वीडियो के एक और हिस्से में देखा जा सकता है कि मुतल्लिका बीडीसी चेयरमैन अपने सामने बैठे नौजवानों में पैसे तकसीम कर रहा है। उधर जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुलजिम को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। वाज़ेह है कि बनकूट ब्लॉक में 4 दिसंबर को चुनाव हुआ था। बिल्कुल उसमें इंक्वायरी हो रही है और हमने जो कंसर्न जो उसमें अक्यूज्ड है उनसे भी उनको भी शो कॉज निकाला है और जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होती है हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और नेसेसरी एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात, चंद इलाकों में बाइकॉट और एहतजाज के अलावा इंतखाबात से जुड़ी दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों का। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। कठुआ में नौजवान का एक ग्रुप भी किसानों के हक में सामने आए हैं। नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ इस तरह के फरमान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत ये सब कर रही है, जिसको नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि मरकज़ी हुकूमत इस कानून को वापस ले ताकि किसानों को राहत मिले। अब ये लोग, इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब यहाँ का यूथ अब जाग चुका है और हम बीजेपी के सख्त खिलाफ हैं। हम किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हैं। सारी जनता इकट्ठी हो चुकी है, हरियाणा की, पंजाब की, और वहाँ पे किसान वहाँ पे पुलिस से डंडे भी खा रहे हैं और उनको खाना भी खिला रहे हैं। मैं बस यही मांग रखता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर और भारत के जितने भी किसान हैं जो अभी तक सोए हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है इंडिया में, और जाग जाएं। आज ये नौबत आई है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने गलत क्या किया है और सही करने का टाइम यही है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया। ये कार्रवाई आज से शुरू की गई है। ये कार्रवाई जारी रहेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मोहम्मद एहसन की निगरानी में एक टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ होटलों और दीगर जगहों पर गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर किए गए कब्जे को हटाया गया। सरकारी अराजी पर बनाए गए तामीरात को भी मुनहदम किया गया। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SDM गुलमर्ग और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इंतजामिया का कहना है कि जहां भी सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाया गया है या तामीरात खड़ी की गई है, उसे वापस हासिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। तो नाज़रीन, सयाहती मकाम गुलमर्ग में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया। ये कार्रवाई आज से शुरू की गई है। ये कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मोहम्मद एहसन की निगरानी में एक टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ होटलों और दीगर जगहों पर गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर किए गए कब्जे को हटाया गया है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज श्रीनगर में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। हबक ब्रेन
तेलबल भगीरूप सिंह और मिस्कीन बाग में चंद मकानों और दीगर ढांचों को मुनहदम किया गया। हालांकि लोगों की जानिब से इस मौके पर मज़ाहमत की गई, लेकिन हुकाम ने कामयाबी के साथ इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल की। इसके अलावा ब्रेन, दूध मोहल्ला और सैदा कदल में भी गैर मुजाज तजावुजात हटाए गए। इस मौके पर लोगों पर जोर दिया गया कि वो गैर कानूनी तामीरात से गुरेज करें, बसूरत दीगर उन्हें इन्हदामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर फेयर प्राइस डीलर्स यूनियन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। राशन की इजराई से पहले एडवांस पेमेंट से मुतल्लिक अहकामात के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतजामिया से इस मामले पर दोबारा गौर करने की अपील की। महकमे के सरबराह ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें उन्होंने ये लिखा कि पहले आप कैश जमा करो फिर राशन ले लो। हम उसको पूरा कंटेम्प्ट करते हैं उस ऑर्डर को। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सिमरनदीप साहब से गुजारिश करते हैं वो ज़ाती तौर पर इसमें मुदाखलत करे, और एडवाइजर फारूक साहब से भी गुजारिश करते हैं वो इसमें मुदाखलत करे। अगर ये ऑर्डर हमारे महकमे के सरबराह वापस नहीं लेंगे, क्या पता है ये हड़ताल कब तक। जेके हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ICDS ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें अदा करने और उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि तनख्वाह न मिलने से उन्हें माली परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मजबूर हो गए आज सड़क पे निकलने के लिए, इसी वजह से कि हमारी 3 साल की पे बंद है। 3 साल की पे हमारी बंद है। हमारा हर साल ये मसला हो जाता है, हर साल हमारी पे बंद की जाती है। मसला ये वो कहते हैं कि आपके 50 पोस्ट ही सैंक्शनड है। अगर 50 पोस्ट सैंक्शनड है, 850 कैसे लगे। हमारी डिमांड है कि एक तो हमें रेगुलर हमारी पोस्ट सैंक्शन कर दे, और दूसरा ये कि हमें हमारी पे रिलीज कर दे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।